السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ سندھو۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ ایاز صادق نے ہماری ایئر فورس، آرمی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہیں کوئی ندامت نہیں ہے۔ اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ پی ڈی ایم کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے، ان کا جو بیانیہ ہے وہ کسی طرح سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ سیاسی بدماشوں کو ملک کا تاثر مسخ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت سیاسی غنڈہ گردی نہیں چلنے دے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کے اپوزیشن پر سیاسی وار، کہا پی ڈی ایم کے کسی رہنما نے ایاز صادق کے بیان کی مذمت نہیں کی۔ ایاز صادق کو ندامت نہیں ہے، نہ ہی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ حکومت سیاسی بدماشوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گی۔ اس قسم کے بیانات پر حساب لیا جائے گا۔ ملکی سالمیت کے خلاف باتیں کرنے پر عوام انہیں سزا دیں گے۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ ملک کے مفاد میں نہیں، اداروں میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ رہنما اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے لیکن مجبور ہیں۔ نون لیگ کو مشورہ ہے کہ وہ مسلم لیگ پاکستان بنا لے۔ سیاسی بات کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس سے پاکستان کے بیانیوں کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس سلیکٹڈ حکومت نے ہندوستان میں جو نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ناکام کوشش، اس کو تقویت دینے کی کوشش کی۔ میرے پاس بے شمار راز ہیں، میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ انشاءاللہ دوں گا۔ میری سیاسی بات کو بھارت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ میرا بیان دوبارہ سنا جا سکتا ہے، وہ موجودہ حکومت سے متعلق تھا۔ لیگ رہنما ایاز صادق کی مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ ایاز صادق نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن بھارت کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں۔ حکومت سیاسی لڑائی میں افواج پاکستان کو شامل نہ کرے۔ میرے پاس بے شمار راز ہیں، لیکن کبھی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا نہ کبھی دوں گا۔ کسی کو حق نہیں کہ مجھے غدار کہے۔ یہ سراسر پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ بھارت کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ملک میں اختلافات کی حدود قائم ہونی چاہیے۔ اختلافات ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن کسی کو حق نہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا ایاز صادق کے بیان پر پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح حب الوطنی پر شک کرنا صحیح نہیں۔ غداری کی تعریف حمود الرحمان کمیشن میں واضح کر دی گئی ہے۔ پچھلی حکومتیں ملک کو بلیک سے وائٹ لسٹ میں لے کر گئیں، ان کو تو کوئی قانون سازی نہیں کرنا پڑی۔ سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایاز صادق نواز شریف کی تھپکی کے بغیر یہ بیان لگا سکتے ہیں۔ فوج کے بارے میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جرنیلوں کے اور جوانوں کے درمیان کہا جا رہا ہے یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ ریاست سے لڑائی کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ سیاست جس خطرناک دوراہے میں داخل ہو رہی ہے، اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا ایاز صادق کے بیان پر بھارت میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کی آشیرواد کے بغیر ایاز صادق اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دے سکتے۔ اپوزیشن سیاست کو ریاست پر فوقیت دے رہی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود فوج ہی جمہوریت کی ضمانت ہے۔ عمران خان نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ کرپشن کے علاوہ تمام معاملات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ نہ ملک مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے، نہ ہی اسمبلیاں توڑی جا رہی ہیں۔ فروری تک سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ عمران خان سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ حکومت دشمنی میں سیاسی جماعتیں حد پار کر گئیں۔ پاک فوج کے خلاف بولنے والوں کو بھارت چلے جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے شور شرابے کا واحد مقصد لوٹی ہوئی دولت بچانا ہے۔ سیاسی جماعت کے رہنما کی طرف سے الزام تراشی کی گئی۔ پوری قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
अयाज सादिक का बयान बिल्कुल दुरुस्त था। उनकी तनकीद वज़ीर ख़ारजा से मुताल्लिक थी। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी पाकिस्तानी को हक नहीं कि वो दूसरे पाकिस्तानी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे। हम पाकिस्तान के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। इदारे तभी मजबूत होंगे जब आइन के मुताबिक चलें। अयाज सादिक को कानून के मुताबिक सजा देना होगी, वरना ये कैंसर मजीद फैलेगा। नून लीग की माफ़ी मान ली गई तो अगली बार इससे भी बुरी और गिरी हुई बातें करेंगे। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का बयान, कहा चोर आकाओं की करप्शन बचाने के लिए इस हद तक गिरना इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है। पहले रियासत के खिलाफ जहर उगलना, फिर मुकर जाना नून लीग का वतीरा है। कागजी शेर और जाली इनकलाबी करप्शन का हिसाब दिए बगैर बच नहीं सकेंगे। मौलाना हमेशा की तरह फितने और शर की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस कठपुतली को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नाकाम करवाएंगे, जनवरी तक मेरा आपसे वादा है कि हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इस कठपुतली सेलेक्टेड नायल जालिम को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, घर भेजेंगे। जनवरी तक कठपुतलियों को घर भिजवा कर रहेंगे। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर कब्जा करना चाहती है, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिज़र में जलसे से खिताब, कहा एक वफाकी वजीर यहाँ वोट खरीदने के लिए आए हैं। अवाम को कहता हूँ आप इनसे पैसा लो, वोट पीपल्स पार्टी को दो। गिलगित के अवाम बाशऊर हैं, इमरान खान के झूठे वादों में नहीं आएंगे। PTI हुकूमत तब्दीली के नाम पर तबाही फैला रही है। घर देने का वादा करने वालों ने अवाम के सर से छत छीन ली। आज मुल्क में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ दे रही है। अब्दुल कादिर बलोच लीगी क़यादत से नाराज़ या बयानिए पर एतराज़। अब्दुल कादिर बलोच का मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की सदारत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अब्दुल कादिर बलोच का कोयटा जलसे में सनाउल्लाह ज़हरी को ना बुलाने पर पार्टी से तनाज़ा चल रहा था। शाहिद खाकान अब्बासी ने सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में बुलाने से इनकार किया था। अब्दुल कादिर बलोच को पार्टी पॉलिसी, फैसलों और PDM जलसे पर भी एतराज़ था। एहसन इकबाल कहते हैं अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान तनाज़ा है। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफ़ा देना चाहें तो उनकी मर्जी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज को पेश ना किया जा सका। जेल हुकाम ने बताया हमजा शहबाज ने बख्तर बंद गाड़ी में आने से इनकार किया। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या ये अब मुल्ज़िमों की मर्जी होगी कि वो पेश हों या ना हो? वो कौन सी गाड़ी में जाएगा और कौन सी गाड़ी में नहीं? ये रियासत की नाकामी है कि वो मुल्ज़िम के सामने बेबस है। मुल्ज़िमों का तर्ज अमल जुडिशल सिस्टम के लिए ख़तरा है। हुकूमत पंजाब, IG जेल खाना जात, CCPO लाहौर और SP हेडक्वार्टर्स को तौहीन अदालत पर शोकॉज नोटिस जारी। 10 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत का तमाम अफराद के खिलाफ सेक्शन 16B के तहत कार्रवाई का भी हुक्म। हमजा शहबाज शायद बख्तरबंद गाड़ी की बजाय लेमोजीन, मर्सिडीज या चार्टर्ड तैयारे से अदालत जाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा हमजा शहबाज खरबों डॉलर्स की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सर्टिफाइड मुल्ज़िम और मुजरिम हैं। अब एक आम मुजरिम की तरह सलूक होगा, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। लीग रहनुमा अताउल्लाह तारर कहते हैं कि हमजा शहबाज कैदी होते हुए पेशी से कैसे इनकार कर सकते हैं। जेल के दरवाजे पर हमजा शहबाज की पंजाब पुलिस के साथ कलामी हुई, जिस पर उन्हें अदालत पेश नहीं किया गया। अयाज सादिक और बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात नाकाबिल फ़हम और कौमी मफादात के यकसर मनाफी हैं। ऐसे बयानात मुल्क दुश्मन बयानिए के आकाश हैं, जिसे मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल, कहते हैं अयाज सादिक समेत बाज़ अपोजिशन रहनुमा मुल्क दुश्मनी की हद पार कर चुके हैं। मुल्क दुश्मनों का एजेंडा पहले चला है, ना आइंदा चलने दिया जाएगा। मुल्क की जड़ों को खोखला करने के मज़मूम अज़ाइम की हर सतह पर भरपूर मज़म्मत करते हैं।
अयाज सादिक का बयान गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। नून लीगी क़यादत कौमी सलामती के इदारों को निशाना बना रही है। ऐसा करने वालों को हम बज़ौर ताकत रोकेंगे। नून लीगी MP अशरफ अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ की अब इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। नवाज शरीफ ने गिरफ्तार होना है और मुकदमात का सामना करना है। अशरफ अंसारी ने मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई भी कर दी। जलील शर्कपुरी कहते हैं, लीगी कायद इलाज के लिए लंदन गए हैं, वो सिर्फ इलाज पर तवज्जो दे। मुल्क से बाहर बैठकर सियासी कमान नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाज का हिस्सा नहीं बनूंगा। तहरीक इंसाफ का कल मज़ार कायद से 3 तलवार तक रैली निकालने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि पाक फौज की वजह से कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। जो इस बयानियत से मुत्तफिक नहीं वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं। खुर्रम शेर ज़बान बोले, अय्याज सादिक के अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज। 24 घंटों में मजीद 11 अफराद जाँ बहक। एसोसिएट डीन खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री डॉक्टर सुल्तान ज़ेब भी शामिल। 807 नए मरीज भी सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 12,121 हो गई। इस्लामाबाद की मजीद कई गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हुकूमत का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों की मदद लेने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया, जो शहरी मास्क नहीं पहन रहे उनकी तस्वीर लेकर लोकेशन के साथ 0353336262 पर भेज दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्की में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। तुर्की को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। ट्वीट किया, हम तुर्क अवाम के साथ खड़े हैं। 2005 के ज़लज़ले में तुर्की की इमदाद को कभी फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब को फ़ौन हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। अभी आगाज में आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, जिसका इतलाक रात 12 बजे से होगा। पेट्रोल ₹1.57 फी लीटर सस्ता किया गया है। नई कीमत ₹102.40 हो गई। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल 84 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। नई कीमत ₹103.22 मुकर्रर कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है, जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। सियासी बदमाशों को मुल्क का तासुर मस्क करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के अपोजिशन पर सियासी वार। कहा, PDM के किसी रहनुमा ने अय्याज सादिक के बयान की मजम्मत नहीं की। उनका मजीद कहना था कि अय्याज सादिक को कोई निदामत नहीं है और ना वो मुआफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगी। भारतीय मीडिया पर इन तकारीर को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इनको इस किस्म की स्टेटमेंट्स पे हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे और इनके साथ कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। अय्याज सादिक और अपोजिशन के मुतनाज़े बयानात पर शिबली फराज के लफ्जों के वार। अय्याज सादिक ने हमारी बहादुर एयरफोर्स, आर्मी, उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनके मोराल को नीचे करने की कोशिश की। उन्हें कोई नदामत नहीं है, वो इसकी ना माफ़ी मांगना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि किसी को भी मुल्क का तासुर मसख करने की इजाज़त नहीं देंगे। PDM के जितने भी लीडरशिप है, इनका जो बयानिया है वो किसी तरह से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। शिबली फराज ने कहा कि अब सियासी मुफादात की बजाय कौमी मुफादात पर बात होगी। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मेरी सियासी बात को भारत का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। साबिक स्पीकर लीगी रहनुमा अय्याज सादिक कहते हैं कि मेरा बयान दोबारा सुना जा सकता है, वो मौजूदा हुकूमत से मुतालिक था। किसी को हक नहीं कोई मुझे गद्दार कहे। मेरे पास बेशुमार राज हैं, लेकिन कभी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया ना ही कभी दूंगा। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन भारत के मामले में हम सब एक हैं। लाहौर में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने मौलाना फजल रहमान को अपने घर नाश्ते की दावत दी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमाओं की 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात जारी रही।
मुलाकात के बाद सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं मुहिब वतन हूँ और मेरा बयान मुल्क व कौम के खिलाफ नहीं था बल्कि हुकूमत के खिलाफ था। सियासी सोच हमारी मुख्तलिफ हो सकती है, मगर जहां पाकिस्तान का मौक़िफ़ आता है, पाकिस्तान की बात आती है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान बोले, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना किसी का हक नहीं। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है। नाजायज हुकूमतें हम पर मुसलत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आईन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। सरदार अयाज सादिक ने अपने खिलाफ लगने वाले बैनर्स पर अफसोस का इजहार भी किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। रियासत से लड़ाई के नताइज खतरनाक होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, सियासत जिस खतरनाक दोराहे में दाखिल हो रही है, इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। अयाज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर अयाज सादिक गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्क में सियासी हालात अबतर हो रहे हैं। सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अय्याज सादिक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर ये बयान लगा सकते हैं। फौज ही इतने शदीद हालात के बावजूद जमहूरियत की जमानत है और जो कुछ फौज के बारे में एक सोची समझी साजिश के तहत जर्नैलों के और जवानों के दरमियान कहा जा रहा है, ये गैर मुल्की एजेंडा है। वफाकी वजीर रेलवे ने एक बार फिर 1 नवंबर से फरवरी तक को अहम करार दिया। ना मुल्क मार्शल की तरफ जा रहा है, ना इमरान खान असम्बलियां तोड़ रहा है। इमरान खान इस सारे क्राइसिस से सुरखरू होकर निकलेगा इंशाल्लाह। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।